السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ کشف الشبہات نامی کتاب مکمل طور پر 12 درسوں پر مشتمل یہ دروس آپ کے سامنے ہفتے میں 3 دن اتوار، منگل اور جمعرات، اسی طرح سے 4 ہفتوں پر مشتمل یہ دروس ہوں گے۔ اس سلسلے کی اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ پہلی کڑی ہے، اور بہرحال میں یہ جو جمعیت اہل حدیث جو یہ پلیٹ فارم ہے، ان کے جملہ اراکین کا شکریہ ادا کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے یہ پوری ٹیم، اس میں جتنے لوگ بھی ہیں، یہ بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں، اور ان کا یہ عمل یقیناً بہت بڑا عمل ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیا جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ انبیاء و رسول کی جو دعوتیں تھیں، ان دعوتوں کے لیے ایک سنہری اور بہت بڑا اسٹیج انہوں نے سجا کر کے رکھا ہے۔ اللہ ان کی قد و کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے، جس سے نبوی کام اور کاز دھیرے دھیرے اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے، جو بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید اخلاص کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو کتاب آپ کے سامنے پڑھنی ہے وہ کشف الشبہات ہے، اور اس کتاب کا جو اصل جو نقطہ جس میں جو سمجھانا ہے، اس کتاب کے اندر جو اصل پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں عوام کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کچھ تو جہالت کی وجہ سے عوام میں پائی جاتی ہیں، کچھ جو وقت کے برے علماء ہیں، جسے علماء سو کہتے ہیں، برے علماء کے اپنے پیٹ پر یا اپنی چودھراہٹ پر یا اپنے منبر و محراب پر آنچ آنے کے خطرے اور خدشے نے انہیں شکوک و شبہات میں، غلط فہمیوں اور مغالطے میں ڈال رکھا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اور پیدا ہونے میں 2 بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو انسان خود جاہل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے یہ ہے کہ بعض علماء سو، بلکہ بہت سارے علماء سو نے اپنے اپنے وقت میں اپنی عوام کو، بھولی بھالی عوام کو جو جہالت میں پڑی تھی، انہیں سیدھے راستے پر آنے نہیں دیا، طرح طرح کی اور شکوک و شبہات میں انہیں ڈال کے رکھا، تاکہ ان پر وہ حکومت کر سکیں، ان کے جیب پر وہ ہاتھ ڈال سکیں، ان کے عقیدے سے کھلواڑ کر کے اپنی چودراہٹ اور اپنی کرسی کی بحالی کو وہ مکمل طور پر بحال کر سکیں۔ تو یہ اصل مسئلہ تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے عقیدہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود کو، ہر بچے کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اور آپ سوچیں، جب ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہو تو وہ عقیدے ہی سے نابلد ہو، عقیدہ ہی اس کے سمجھ میں نہ آئے، تو پھر میرے بھائی دوستو، پھر فطرت اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، آپ ذرا سمجھیے گا، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیں،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف علماء سمجھ پاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فقہا سمجھ پاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو عوام نہیں سمجھ پاتی۔ میرے بھائی دوستو، وہ علوم و فنون سے متعلقہ چیزیں ہیں، لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو بچے سے لے کر کے جوان تک، جوان سے لے کر کے بوڑھے تک، پڑھے لکھے سے لے کر کے عالم تک اور جاہل سے لے کر کے فاضل تک سب کے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کو عالم بنانا یہ مطلوب نہ تھا نہ یہ ممکن تھا، لیکن عقیدے کا مطالبہ اللہ رب العزت نے سب سے کیا ہے۔ اب ایسا ممکن نہیں کہ عقیدے کا مطالبہ ہو تو سب سے مگر سمجھ پائیں چند ہی لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے سمجھ میں برابر طور پر کم و بیش ہو سکتا ہے، سمجھ میں بنیادی موٹی چیزیں ضرور آئیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، مدبر و منتظم ہے، منصرم ہے، لائق عبادت ہے، خوبیاں اس کا حصہ ہیں، خوبیوں سے وہ لیس ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ اور پاک ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پر عام انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، مان سکتا ہے اور سمجھتا اور مانتا بھی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مطالبہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے کیا ہے، اور جب تمام انسانوں سے اس کا مطالبہ ہے تو پھر یہ تمام انسانوں کے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اگر یہ سب کی سمجھ میں آنے والی چیز نہ ہوتی تو پھر اس کا مطالبہ سب سے نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی چیز کا کسی بندے سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو، جو اس کے بس میں نہ ہو، جو اس کے بس سے باہر ہو۔ ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی سوچیں ایسی چیزوں کا مطالبہ ہو کیوں سکتا ہے جس چیز کی انسان تاب نہ لا پائے۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے عقیدے کا مطالبہ اللہ ہر فرد بشر سے کیا ہے۔ عقیدے میں لوچ کسی کی طرف سے بھی اگر ہوا تو اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں عقیدہ کی اہمیت، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ عقیدہ کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت ایک بلند بالا عمارت کے بنیاد کی ہے۔ عقیدہ کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو جسم انسانی کے اندر روح کی ہے۔ جس طرح سے بغیر بنیاد کے ایک عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اگر بغیر بنیاد کے کسی عمارت کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ کوشش عبث ہوگی، بیکار ہوگی، فضول ہوگی، وہ عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر ظاہری آنکھ سے وہ عمارت دکھے بھی تو پھر ایسی عمارت کب ڈھا جائے اور کب اس کے اندر انسان آ کر کے دب کر کچل کر مر جائے، ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں نے بتایا کہ جس طرح سے جسم انسانی ہے، یہ مکمل جسم انسانی، سراپا جسم انسانی جو ظاہر آپ کو دکھ رہا ہے، اس کے اندر ایک روح ہے۔ وہ روح جب تک ہے تب تک یہ انسان چلتا اور پھرتا ہے، تب تک اس کی وقعت اور اہمیت ہے، تب تک اس کے اندر اعمال اور افعال ہیں۔ جس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے اس وقت انسان، اب اس کی وہ شان بان نہیں، اب اس کی وہ اہمیت نہیں، اب اس کا وہ مقام نہیں۔ جس طرح سے بغیر روح کے انسان کی کوئی وقعت نہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر اعمال ہوں، اخلاق ہوں اور ساری چیزیں ہوں، اور عقیدہ نہ ہو تو پھر ایسے عمل کا، ایسے اخلاق کا، ایسے افعال کا، ایسی چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ عقیدے کے باب میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا گیا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اسی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اسی فتنے کے ازالے کے لیے، انہی شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے، عوام کے ذہن و دماغ سے اسے کھرچنے اور صاف کرنے کے لیے یہ کتاب تصنیف اور تالیف کی
किताब के मुअल्लिफ और मुसन्निफ कौन हैं, मैं इनका नाम और इनकी हालत और इनकी सीरत, इन तमाम चीज़ों पर मैं आखिर में दर्स दूँगा। जो 12वां दर्स होगा वो इंशाअल्लाह इस किताब के लिखने वाले कौन हैं, उनकी हत्तल इम्कान कदर तफसील से उनकी सीरत पर गुफ्तगू होगी। मैंने अभी उनका नाम नहीं लिया है साहिब किताब का, और मैं इंशाअल्लाह 11 दुरूस में उनका नाम लूँगा भी नहीं। उसमें एक हिकमत है मेरी अपनी सोच के हिसाब से एक हिकमत है। और मैं आपको बता दूं, वो जो शख्स है, वो जो शख्सियत है, वो अपने आप में मुकम्मल एक सरापा समंदर है। और मैं आपको बता दूं, इशारा कर दूं, वो मुबल्लिग भी हैं, वो दाई भी हैं, वो इमाम भी हैं, वो शेखुल इस्लाम भी हैं, मैं मुजद्दिद भी हैं। उनके जो कारनामे हैं, लोगों ने, उलमा ने, जो उलमाए मुवहिदीन हैं, जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, जिनका ताल्लुक़ किताब व सुन्नत से है, जिनके अक़ीदे सहाबे किराम, दीगर जो अतबाए ताबईन और जो उम्मत के जो सरफ़े सालिहीन हैं, उन जैसे हैं, जिनका फ़हम सहाबा है, फ़हम ताबईन है, फ़हम तबा ताबईन है, उन लोगों के अक़ीदे रखने वाले जैसे लोगों ने बाद में उनकी तारीफ़ात के पुल बांधे हैं। उनकी सीरत और उनके हालात ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये इन तमाम चीज़ों को किताबों में उसको मौजूद रखा है और उसको लिख रखा है। मैं आपको बता दूं कि वो ज़ात बड़ी अहम ज़ात है, लेकिन साथ ही साथ जो ज़ात बड़ी अहम होती है उस पर दुश्मनों की तरफ से यलगार भी बहुत ज़्यादा होती है, उस पर दुश्मनों के तीर भी बहुत बरसते हैं, उन्हें लान तान भी किया जाता है, उन्हें सब्बो शतम भी किया जाता है। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जाता, कोई ऐसा तरीक़ा नहीं छोड़ा जाता जिससे उसको ज़दोकोब किया जा सके, उसे परेशान किया जा सके, उसे हत्ता की उसे मारने की भी कोशिश की जाती रही है। शुरू से आप देख लें, शुरू से ये तरीक़ा रहा है कि जब आदमी तौहीद की बात करेगा, अक़ीदे की बात करेगा, अल्लाह उसके रसूल की बात करेगा, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के बात करेगा, तौहीद की सरबुलंदी की बात करेगा, माहौल और मुआशरे से बुराई के ख़ात्मे की बात करेगा, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीज़े के अंजाम दही और उसके तनफीज़ की बात करेगा, तो उसकी मुखालफत की जाएगी। उसकी मुखालफत ही नहीं की जाएगी बल्कि उसे ज़दोकोब किया जाएगा, उसे मारा तक जाएगा, उसे मारने की धमकी भी दी जाएगी, उसको जान से मारने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। लेकिन नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो इस शख्सियत को बाद लोगों ने बड़ा बदनाम किया है। अल्लामा मसऊद आलम साहब नदवी ने उनकी सीरत पर एक बड़ी मोटी, काफ़ी हद तक अच्छी मोतबर किताब लिखी है उनकी सीरत पर, और उसका नाम रखा है मज़लूम बदनाम मुस्लिह। मैंने नाम काट दिया है, उनका नाम लिखा और नाम के नीचे लिखा एक मज़लूम बदनाम मुस्लिह, यानी एक ऐसा दाई है, एक ऐसा इस्लाह करने वाला है, एक ऐसा शख्स है जिसने एक ऐसी तहरीक चलाई जिस तहरीक का अहम नुक्ता, बुनियादी नुक्ता उठाना था, तौहीद के तकाज़े को दुनिया के सामने पेश करना था। तौहीद की सरबुलंदी के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, हत्ता कि उसने जिहाद तक भी किया। और उस मैदान में जब से शुरू हुए, जब से वो तहरीक चलाई, आखिरी दम तक उस तहरीक के लिए अपने आप को वक्फ़ कर रखा। उस ज़ात को लोगों ने बदनाम कर रखा और मज़लूमियत से दो चार करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैंने बताया कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, उसके दीन को दुनिया के अंदर आम करने के लिए, उस मैसेज और पैगाम को दुनिया के अंदर नशो इशाअत के लिए इंसान निकल पड़ता है, तो वक्ती तौर पर मसाइब आते हैं, रास्ते रोके जाते हैं, लेकिन अंजाम इन्हीं लोगों का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों का ज़िक्र जमील क़यामत
रات की सुबह तक के लिए छोड़ देता है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, जब तक एक भी मुवाहिद इस धरती पर बाकी रहेगा तब तक उस शख्स का नाम जली हरफों में मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ, अकीदत के साथ लिया जाता रहेगा। मैं बता रहा था ये कि मैं उनकी तारीफ, उनकी सीरत और उनका बायोडाटा आखिरी दर्स में रखूँगा। और मैं आपको बता दूँ ये कितना मजलूम शख्स है और कितना बदनाम इसे किया गया है। हालांकि ये मुस्लिह है, इसने तौहीद को, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की सरबलंदी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। मैं बता दूं, अभी जब ये किताब आप पढ़ेंगे, जब 11वें दर्स तक पहुंचेंगे, तब आप इस शख्सियत की तालीमात को जब परखेंगे तो आप खुद वाक़अतन बोल पड़ेंगे कि वो बदबख्त हैं वो लोग, मनहूस हैं वो लोग जिन्होंने इतनी अहम शख्सियत को ऐसे ऐसे बुरे अलकाब से नवाजा है और ऐसे है। इसे जान से मारने की धमकी दी, इसे जान से मारने की पूरी कोशिश तक की। घर में लोग फला कर कूद कर आ भी गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जितनी किताबें लिखी, बड़ी मोतबर किताबें लिखी, और किताबें जो लिखी वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के दलाइल से मरबूत और मुज़य्यन लिखी। मैं आपको बता दूँ, उनकी एक किताब है उनके एक मुखालिफ को दी गई, उनकी एक किताब उनके एक मुखालिफ को दी गई, और किताब का जो पहला वर्क़ा था जिस पर किताब का नाम और किताब के मुअल्लिफ का नाम था, उस नाम को फाड़ दिया गया, उसको निकाल करके दिया गया। यानी किताब दी गई, मुकम्मल किताब थी, मगर उस किताब में किताब का नाम और किताब वाले का नाम, किताब लिखने वाले का नाम नहीं था। जब उस मुखालिफ शख्स ने उस मुकम्मल किताब को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसका तबसरा, उसका कमेंट, उसका बयान ये है कि ये किताब तौहीद के मैदान में, तौहीद के बाब में, तौहीद के हवाले से बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी मुदल्लल किताब के अंदर तो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के दलाइल के अलावा इसमें तो कुछ है ही नहीं। यानी ये किताब तौहीद के बाब में बड़ी लाजवाब, मोतबर और अनमोल। जब उसी शख्स को वो पहला पन्ना और पहला वर्क भी दिया गया जिस पन्ने पर उस किताब का नाम और उसके नीचे उस किताब के लिखने वाले का नाम था, तो फिर वो मुकर जाता है। मेरे भाई, इसी से अंदाज़ा होता है कि वो उस शख्स को बदनाम किया गया जो मजलूमियत की ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मौजूद उन तमाम लोगों की आंखें खोल गया जो तौहीद की तलब रखते थे, जिनके दिलों में तौहीद की ज़रा भी रमक बाकी थी, तौहीद की तलाश और जुस्तजू बाकी थी। उनकी दुनिया को रोशन और मनव्वर करके चला गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, अलैहि रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो, करोड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने साए रहमत में ढांप ले। मेरे भाई दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये किताब है, जिस किताब को आप पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं, मुझे भी ये इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह हम सब को, ये कहने वाले को और तमाम नाज़रीन को, और जहाँ तक ये बात पहुँचे, जब तक पहुँचे, अल्लाह उन तमाम को तौहीद की रमक, तौहीद की मोहब्बत, उसकी हलावत सीनों में मौजूद कर दे, तौहीद को समझने की तौफीक दे और तौहीद के तकादे पर खरा उतरने की तौफीक दे मौला। और तो हमें वो उन आमाल के करने की तौफीक दे जो तेरी रज़ा का ज़रिया और तेरे रहमत का ज़रिया और सबब बनकर तेरी बनाई हुई नेमत जो जन्नत की शक्ल में है उससे हम महजूज हो सकें और तेरा दीदार हो सके। अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमा और ये कबूलियत इस नहज पर हो, इस डगर पर हो कि हम जन्नत में तेरा दीदार कर सकें। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मुख्तसर सी तमहीद थी, लेकिन बहरहाल मैंने आपका इश्तियाक जगाया है, शौक़। आप 12वें दर्स में इंशाअल्लाह चौथे हफ्ते के जुमेरात को इंशाअल्लाहुर रहमान आपके सामने इस किताब के लिखने वाले की सीरत निहायत ही इख्तिसार से रखने की कोशिश की जाएगी। अब हम चलते हैं किताब की तरफ। मेरे भाइयों दोस्तों, किताब लिखने वाले ने सबसे पहले जो लिखा है बिस्मिल्लाह। किताब लिखने वाले ने क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम से किताब शुरू की और उसके बाद उन्होंने लिखा इल्म
रहमकल्लाह अन्न तौहीद हुआ इफरादुल्लाह सुब्हानहू बिल इबादह। मेरे भाइयों दोस्तों, वो कहते हैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं कि ये किताब शुरू की जा रही है उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है, मेहरबान है। आप इसका तर्जुमा जानते हैं, उसमें मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें शुरू किससे किया है? अल्लाह के नाम से, जो रहमान है, जो रहीम है। मैं कहता हूँ कि अगर एक मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मानी को, उसके मफाहीम को अगर समझता है और अगर अपने आप को उतार ले तो पूरी किताब का निचोड़ यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मिल जाएगा। लेकिन कि हम अल्लाह पर तो पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम तो हम पढ़ते और सुनते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, लेकिन इन तमाम के हक़ाइक़ को नहीं समझते, तकाज़े को हम पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब एक इंसान किसी चीज़ को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो फिर उस पर अमल नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है जब अमल नहीं होगा तो उसमें हलावत, मिठास और चाशनी नहीं आ सकती। तो उन्होंने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इस किताब का आगाज़ किया। और मैं आपको बता दूं कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत, क्योंकि यह जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तो तबर्रुक के लिए, दूसरा यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किताब की शुरुआत की है। और उसके बाद उन्होंने फरमाया इअलम रहमकल्लाह। देखें, उन्होंने कहा कि जान लो, याद रखो, मुतवज्जे हो जाओ, कान लगाओ, अल्लाह आप पर रहम करे। दुआ भी दी, मुतवज्जे किया और दुआ देते हुए फिर आगे मैसेज दिया। मैसेज क्या है? पहला मैसेज बिस्मिल्लाह से शुरू किया, मुतवज्जे किया, दुआएं दी। अल्लाह की रहमत हो आप पर, रहमकल्लाह, अल्लाह की रहमत हो आप पर, अल्लाह हम सब पर अपना रहम करम फरमा। आगे कहते हैं अन्न तौहीद हुआ इफरादुल्लाह सुब्हानहू बिल इबादह। कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की इबादत करना ही तौहीद है। मजमूई तौर पर मिन जुमला तौहीद का माना क्या निकला कि एक अल्लाह की इबादत करना ही दरअसल तौहीद है। अन्न तौहीद हुआ इफरादुल्लाह सुब्हानहू बिल इबादह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इबादत में तने तनहा खास कर देना। अल्लाह को के एक अल्लाह के लिए इबादत को ख़ास कर देना, इबादत ख़ास करना है अल्लाह के लिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपके सामने बयान करता चलूँ। एक तो ये है कि तौहीद है क्या, जो इसमें नहीं है। एक तो तौहीद है क्या, तौहीद की किस्में क्या हैं, और इसी तरह से जो कलमे तौहीद है, कलमे तौहीद का माना क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका तकाज़ा क्या है, और उसके फ़वाइद व समरात क्या हैं। यकीन जाने ये जो मौजू है बड़ा तफसील तलब मौजू है। ये उन्वान बड़ा ही तफसील तलब है और उसकी तफसील में यकीनन हम नहीं जा सकते, क्योंकि 12 दुरूस में किताब भी पढ़ना है। 12 दुरूस में इन सारी तफसील पर हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर ये बताता चलूँ कि तौहीद कहते किसे हैं और तौहीद है क्या। तो एक बात ये जान लें निहायत ही इख्तिसार से, बल्कि तौहीद को जानने से पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब समझ लें। तौहीद से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमे तौहीद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है। जब कलमे तौहीद हमने उसका इकरार किया, तो अब जिस चीज़ का हमने इकरार किया है उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। तो पहले हम जिस चीज़ का इकरार करते हैं, जो कलमे तौहीद है, उसको हम ज़रा पहले समझ लेते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कलमे तौहीद में ला इलाहा इल्लल्लाह ये 4 लफ्ज़ हैं। ला इलाहा, जितने माबूद, मैं नहायत ही सरसरी तौर पर, मुकम्मल उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बात आगे निकल जाए। देखो 25 मिनट ही हो गया। तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ इसका माना मतलब बता दूँ, इंशाल्लाह फिर अगले परसों के दुरूस में बाकी गुफ्तगू होगी। ला इलाहा, बंदे ने जब इकरार किया इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने 2 चीज़ों का इकरार किया है। एक तो इकरार इस बात का है कि इस धरती पर माबूद नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुकम्मल तौर पर हर तरह के माबूद का उसने इनकार किया।
وہ معबूद इंसान की शक्ल में हो, जैसे बाद लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, या दीगर अम्बिया और औलिया और अतकिया और अज़बिया और दीगर बुजुर्गान दीन और सालिहीन को जो लोग पुकारते हैं वो भी निकल गए, या कोई शख्स फरिश्तों को पुकारता हो तो वो भी निकल गए, या इसी तरह से अशजार व अहजार यानी पत्थर और पेड़, या इसी तरह से गार, या इसी तरह से और दीगर जानवर या और दीगर मखलूक़ात, जितनी मखलूक़ात हैं जिस भी शक्ल में हैं, जिस भी तरह से हैं, उन तमाम का बंदे ने पहले इनकार किया। ला इलाहा, माबूद तो है ही नहीं, माबूद है ही नहीं। तो दोस्तों इस इनकार के बाद फिर बंदा इकरार करता है एक अल्लाह का, इल्लल्लाह, हाँ माबूद तो सिर्फ एक है और वो कौन है? अल्लाह है। यानी इसकी जो असल पूरी इबारत बनती है ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, यानी माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं है। अब यहाँ देखें एक चीज़ और याद रखें, ये जो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह जो अल्लाह से इलाह से है, इलाह कहते देखें ज़िल्लत के साथ, आजिज़ी के साथ, मोहब्बत और उम्मीद के साथ, किसी चीज़ के नफ़ा के हुसूल और किसी नुकसान के डर के साथ किसी के सामने झुकना को अपना महवर और मरकज़ बनाना, वो अल्लाह कहलाता है। तो ये खूबी, इस सिफात के साथ अगर किसी के साथ झुका जा सकता है, किसी के साथ आजिज़ी इनके, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और क्यों ऐसा है? इसलिए कि आप सूरह फातिहा की जो पहली आयत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। कितने जहान हैं, कितने आलम हैं, हम और आप नहीं जान सकते, और हर आलम में कितनी मखलूक़ात हैं, हम और आप उसका एहसास नहीं कर सकते, उसका शुमार, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। उन तमाम आलम का रब्बुल आलमीन है, वो पालनहार है, उसकी खबरगिरी करने वाला है, उसका इंतज़ाम व इंसराम करने वाला है। मेरे भाई दोस्तों, इसीलिए एक इंसान के लिए जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए अगर अपने माथे को टेके, अगर आजिज़ी के साथ, ज़िल्लत के साथ, इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ अगर किसी के सामने खड़े हो तो वो खड़ा होना सिर्फ और सिर्फ रब के सामने हो। इसी तरह से माफ़ौक़ल असबाब, अगर किसी चीज़ का डर हो तो वो डर के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह से माफ़ौक़ल असबाब, अगर किसी चीज़ का मुतालबा हो, किसी नुकसान का डर हो, कोई मोहब्बत हो, कोई खौफ हो, माफ़ौक़ल असबाब, तो वो सिर्फ और सिर्फ ख़ास है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, क्योंकि ये खासा अल्लाह को छोड़कर किसी और के अंदर नहीं पाया जाता। जब किसी और के अंदर इस चीज़ का पाया जाना मुमकिन नहीं, तो फिर उसके सामने झुकना ये अबस है और ये जहालत है और ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो मेरे भाइयों से मैं कहता कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला इनकार तमाम माबूदान का, बाद में इकरार सिर्फ अल्लाह के उलूहियत का, अल्लाह के माबूद होने का। देखें, अगर इसको सिंपल अंदाज में कहा जाए, नॉर्मल अंदाज में कहा जाए कि अल्लाह है, माबूद है, तो अगर नॉर्मल अंदाज में इस बात को कहा जाता तो फिर वो चाशनी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह माबूद है, ठीक है, बंदे ने इकरार तो किया कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह लायक की इबादत है, लेकिन उसमें इनकार नहीं आता कि अल्लाह के अलावा भी कोई ऐसा नहीं है। तो अगर हो, सादा सा जुमला हो, आम अंदाज में हो, जिसमें मनफी और मुस्बत, पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके गुफ्तगू ना की जाए, तो इसमें अल्लाह के साथ साथ दीगर लोगों के माबूद होने का पता चलता है और इससे नुक्ता निकलता है। इसीलिए तौहीद नहायत ही हसास मौजू है, बड़ा लतीफ़ मौजू, सेंसिटिव मौजू है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर कलमा जो हमें कलाम दिया है, वो कलाम इतना जामे है, इतना माने है कि इसके अंदर किसी किस्म के मिलावट का चांस ही नहीं है। कोई मिलाना चाहे तो मिल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलमा दिया है उस कलमे में तौहीद कूट कूट कर भरी है और शिर्क का अक्सर तौर पर, मुकम्मल तौर पर
انکار ہے، اس کی نکیر ہے۔ کلمہ توحید میں اللہ رب العزت کے اقرار کے ساتھ اگر تمام معبودان باطلہ کا انکار نہ ہوا تو وہ کلمہ توحید نہ ہوا۔ پھر ایسا شخص جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت تو ہو، لیکن اس کی عبادت کے ساتھ جزوی طور پر، کلی طور پر، کسی بھی طور پر اگر کسی نے کسی کو شریک ٹھہرایا تو ایسا شخص سب کچھ ہو سکتا ہے مگر موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر دو چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا انکار، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہی حقیقی معنوں میں معبود ہے، علاوہ جتنے معبودان ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں یا لوگوں سے لوگ منواتے ہیں، دونوں شکلیں ہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں کچھ لوگوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی ہے تو اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو آ کر کے مجاور بن کر کے، پجاری بن کر کے یا وہاں آ کر کے فریاد رسی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں نے خود ہی وہاں جا کر کے فریاد رسی کی، استغاثہ کیا، استعانہ کیا، مشکل کشائی کے لیے پکارا، یا اسی طرح سے وہاں جا کر کے دعائیں کی، اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو رکھیں۔ تو یہ جا کر کے لوگوں نے خود رکھیں، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ کبھی کبھی ایسی بھی شکل ہوتی ہے کہ ایک انسان مرتے وقت یہ وصیت کر جاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر کو ذرا بڑی بنانا، اونچی بنانا، اس پر قبے بنانا، اس پر مزار بنانا، اور پھر وہاں آ کر کے اپنی حاجات کے لیے مجھے پکارنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر وہ کہہ کے جائے تب بھی وہ معبودان باطلہ میں شمار ہوگا، اور نہ کہہ کر کے جائے تب بھی وہ معبودان باطلہ میں شمار ہوگا۔ جس بھی شکل میں ہو اس کا انکار ضروری ہے، تب جا کر کے عقیدہ توحید ٹھوس ہوگا اور پھر کلمے کے اندر روح اور جان آئے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی عبادات کے کرنے کا حکم دیا سمپل انداز میں، تو وہیں شرک سے روک بھی دیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھو لوگو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کی پوجا، اس کی پرستش کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی ذرہ برابر بھی شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے، ٹھہرانے سے منع بھی کیا۔ یہی ہے روح توحید کی۔ ایک اللہ کی عبادت صرف کرنا یہ کمال نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو چاہے جائے کہ وہ جبریل امی کیوں نہ ہو، فرشتوں کے سردار ہوں، چاہے جائے کہ وہ انبیاء اور رسول کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، چاہے جائے کہ امت کا کوئی بڑے سے بڑا فرد کیوں نہ ہو، کسی کی بھی شراکت اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ یہ روا نہیں، انسان کے توحید میں خلل آ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ایک طرف توحید کی دعوت دی، دوسری طرف شرک کے انکار کی دعوت بھی دی۔ ایک طرف توحید کو اپنانے کا حکم بھی دیا، دوسری طرف شرک کی نکیر کرنے کا حکم بھی دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمام امتوں میں، جتنی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں رسول بھیجا، ہر رسول کی بنیادی تعلیم، ہر رسول کا بنیادی میسج اور پیغام ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، توحید کو خالص کر لو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی جس بھی شکل میں معبود ہیں، جن کو لوگ پوجتے ہیں،
पूजने की जो भी शक्ल हो। देखिए, पूजने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप माथा टेक दें, माथा टेकना भी पूजना है, उनके सामने खड़ा होना आजिज़ी के साथ भी पूजना है, उनका खौफ रखना भी पूजना है, उनसे वो मोहब्बत जो अल्लाह जैसी हो वो भी पूजना है, उनसे मांगना जैसे एक इंसान माफोकल असबाब तरीके से अल्लाह से मांगता है, ये भी पूजना है। तो हर वो काम पूजना में आता है, हर वो काम इबादत में आता है जो ख़ास है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। मैं इबादत की तारीफ़ इंशाअल्लाह कल आपके सामने रखूँगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, साथ ही साथ शिर्क से बेजार रहना, उसका इनकार करना, जब ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी तब दरअसल तौहीद आपकी मिठास आपको मिलेगी, तब दरअसल आप एक मुवहिद होंगे जिनकी खुशखबरी कुरान में भी मौजूद है, अहादीस मुस्तफ़ा में भी मौजूद है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सही बुखारी सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में अल्लाह के साथ किसी को मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब करके जो सवाल व जवाब हुए थे, लंबी चौड़ी हदीस है, उसका टुकड़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे शख्स को अजाब नहीं देना, अल्लाह युअज़्ज़िबा मन ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जिम्मेदारी है, उसने अपने ऊपर ये कानून लागू कर रखा है कि वो उस शख्स को अजाब नहीं देगा जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा। अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, लेकिन वो अपने आप पर कोई चीज़ लागू कर सकता है, अपने आप पर वो खुद मुख्तार है। तो कहने की बात है मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अकरम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस सुन, सही मुस्लिम की रिवायत है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह, कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत पूजा और परस्तिश की जाती ने इनकार किया। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं, अल्लाह के साथ जिन जिन की भी इबादत की जा सकती हो, अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को भी लोग पूजते हों, जिन जिन के तवस्सुत से उनके अक़ीदे हों कि ये बिगड़ी बनाते हैं, मुश्किल को संवारते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, उन तमाम चीज़ों का बबागे दोहल खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान इनकार किया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है, आपने फरमाया हरमा मालुहु व दमुहु, तो फिर ऐसे शख्स का जान और माल महफूज हो गया। और बहुत सारी दलाइल हैं। बहरहाल मैं अब आपको बताता चलूँ एक आखिरी बात, बल्कि एक दो बातें सही तौर पर, एक एक नुक्ता एक एक बात पर। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा, जाहिर सी बात है, माना और मतलब जब आपने समझ लिया है तो तकादा यही है कि एक ही अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को किसी भी शक्ल में किसी भी वक्त में शरीक ना किया जाए, जिस भी शक्ल में हो सबका इनकार किया जाए। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम व मर्तबा, उसकी फजीलत तो किताब व सुन्नत में भरी पड़ी है, आपने शायद बारहा सुनी हो, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, लेकिन आइए मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। उसके जो शराइत हैं, देखें, हर चीज़ की कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, हर चीज़ की कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की जो फजीलत है आप पढ़ेंगे तो वाक़अतन का शौक़ खूब बढ़ता है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत, उसकी जो समरात है, उसकी जो बरक़ात है, दुनिया में भी आखिरत में ऐसे हैं जिससे मुंह में पानी आ जाए। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, इन नेमतों के हुसूल के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ शराइत हैं। जाहिर बात है, उन शर्तों को अगर एक इंसान पामाल करेगा
दो चार नहीं हो सकता, उन फजीलत को वो नहीं पा सकता। तो उन फजीलत को, उन नेमतों को, उन फ़वाइद को, उन समरात को अगर एक इंसान की चाहत, तलब जुस्तजू है तो फिर शराइत को मलहूज़ रखना होगा। सरसरी तौर पर आप इसको जानते चलें। पहली बात तो ये है कि जो माना और मतलब और जो उसका मुस्बत और मनफी मफहूम है, पढ़ने वाले को उसका इल्म हो। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो माना और मफहूम है उसको वो समझता हो। ला इलाहा, देखो हम में से बहुत लोग ला इलाहा पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत में घिरते हैं तो कभी या अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, कभी या रसूल अल्लाह अदरिकनी, कभी या साहिब ज़मान अदरिकनी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी को, कभी इसको, कभी उसको, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस दर कभी उस दर। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़ुबान से इकरार, और फिर कभी इस दर कभी उस दर। मसाइब में आए तो आप इधर उधर चले जाएं, फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम आपने गोया कि समझा नहीं। तो शराइत में से है, और जब शराइत इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मफ़क़ूद फ़ातल मशरूत, कि जब इंसान शराइत पर अमल पैरा ना हो तो उस शराइत की बुनियाद पर जो चीज़ देने का वादा होता है वो चीज़ मिलती नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस दर्स के इख्तिताम के बाद 3 सवाल करूँगा, जो शख्स इन 3 सवालों का जवाब दे देगा, सही सही दुरुस्त जवाब दे देगा, उसको मेरी तरफ से एक चीज़ गिफ्ट है, इनाम। तो जाहिर सी बात है ये इनाम कब मिलेगा? जब उन 3 सवालों का जवाब दुरुस्त और सही तौर पर जो दे लेगा। अब देखें मैं भाई दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह के जो शराइत हैं उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमे तौहीद है, इसका माना और मफहूम का जानना और फिर जान कर उसके तकाज़े पर अमल करना। तकाज़ा क्या है? जब आपने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जान लिया तो तकाज़ा ये है कि अब आप हर लम्हा, आप खुशी में हो तब भी, गमी में हो तब भी, मसाइब के पहाड़ आप पर टूट चुके हों तब भी आप सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की बात करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और से लौ नहीं लगाएंगे। कुछ भी हो जाए, ज़माना इधर से उधर हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, आपका खसारा किसी भी तौर पर हो जाए, लेकिन आप अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर के भिखारी नहीं हो सकते। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, इसकी चलती फिरती अमली तफसीर नहीं बन जाते तब तक गोया कि आपने पहली शर्त पर अपने आप को खरा नहीं उतारा। दूसरी बात में दोस्तों, पढ़ने वाले को यकीन हो, यानी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप पढ़ रहे हों तो यकीन हो, उसमें शक हो ना हो, किसी किस्म के शक शुबहे की गुंजाइश ना हो। यकीन हो कि हकीकत में, दर हकीकत इसमें कोई शुबहा नहीं कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह को छोड़कर किसी के अंदर कोई एबिलिटी नहीं, कोई खासियत नहीं कि उसकी पूजा की जाए, उसको पुकारा जाए, उसके सामने से जाए। इन 2 चीज़ों के बारे में मुकम्मल यकीन हो, शक की गुंजाइश ना हो। इसी तरह से इंसान जब कलमा पढ़े तो मुखलिस हो, यानी दिल की अथाह गहराई से वो कलमा पढ़ रहा हो, और जो कलमा पढ़ रहा हो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, और उसमें किसी को शरीक न ठहराए। देखिए, जब इखलास होगा तो रज़ाए इलाही ही होगा, और जब इखलास रज़ाए इलाही के साथ इखलास से कोई अमल हो तो उसमें शिरक नहीं आ सकता। जब शिरक आ गया तो ना उसमें इखलास रहा, ना उसमें रज़ाए इलाही रहा। तो रज़ाए इलाही के साथ, इखलास के साथ, शिरक से बचते हुए ये कलमा पढ़ना है, तकाज़े को पूरा करना है। और कहते हैं कि इसके इकरार व एतराफ़ में वो सच्चा हो, उसके तकाज़े को समझने वाला हो, मुनाफिकीन की तरह से सिर्फ ज़ुबान से इकरार करने वाला ना हो, या जहालत की वजह से उसके तकाज़ों से इनहराफ करने वाला ना हो। कभी कभी देखें, एक इंसान ऐसा होता है जो कलमा तो पढ़ता है ज़बान से मगर दिल उस पर मुतमईन नहीं होता, मुनाफिकीन की तरह से। तो ऐसा कलमा पढ़ना भी उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और कभी कभी कुछ लोग कलमा तो पढ़ते हैं मगर कलमा के बारे में वो जाहिल होते हैं कि इस कलमे में है क्या, तो फिर वो कलमे के तकाज़े से इनहराफ कर जाते हैं। अब एक इंसान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन साथ ही साथ उसकी पूरी ज़िंदगी शिरक में, बिदात में, खुराफात में, ज़ात व बुराई में इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर इस शख्स के कलमे का क्या माना होता है? देखें, उसकी जो तफसील है उसमें एक बात याद रखें, अगर एक इंसान यकीनन मुकम्मल तौर पर जाहिल है, कलमे का माना और मफहूम मुकम्मल तौर पर उसे नहीं पता, और उसे
पता होने का कोई ज़रिया उस तक पहुंचा भी नहीं, उस तक तालीम नहीं पहुंची, तो उस पर मुशरिक का हुक्म नहीं लगेगा। उस पर उलमा ने एक तफसील लिखी है, तो उधर मैं नहीं जाना चाहता। तो कहने की बात यह है कि इसके ये जो शराइत हैं, इन शराइत पर जो लोग खरा उतरेंगे वही उसके फ़वाइद व समरात जो दुनियावी हैं या जो उखरवी हैं वही लोग पा सकेंगे। और समरात व बरक़ात में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं चलते चलते, समरात व बरक़ात में एक बहुत बड़ा समरा पूरी उम्मत की वहदत है। इत्तिहाद व इत्तिफाक तौहीद से आता है। तौहीद इत्तिहाद व इत्तिफाक की बुनियाद है, और शिर्क इख्तिलाफ व इंतशार की बुनियाद है। जिस समाज में तौहीद हो, शिर्क से बेजार हो, वो समाज आपस में शेर व शकर होता है। और जो समाज तौहीद से बिदक जाए, शिर्क की भूल भुलैया में वो टामक टोइयाँ मारता रहे, तो फिर ऐसा समाज इख्तिलाफ व इंतशार का दो चार हो जाता है। और आज आप खुसूसन बर्रे सगीर का मुताला कर लें, मुसलमानों की अक्सरियत से आरी है, शिर्क में, उसकी गलादतों में, उसकी गुमराही में, गुमराही के दलदल में पड़ी हुई है। और अफसोस ये है कि शिर्क के साथ उसे शिर्क वो समझते भी नहीं। अफसोस ये है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं कह रहा था कि तौहीद का सबसे बड़ा ज़ाहिरी दुनियावी समरा ये है कि उम्मत में वहदत पैदा होती है, इत्तिहाद व इत्तिफाक पैदा होता है। और जहाँ इख्तिलाफ और जहाँ तौहीद से आपने दामन को छुड़ाया, इत्तिहाद व इत्तिफाक पारा पारा हो जाएगा। उम्मत इख्तिलाफ व इंतशार का शिकार होकर के बिखर जाएगी और फिर दुश्मनों का लुक़्मे तर बन जाएगी। आज हम पूरे दुनिया में उमूमन और अपने बर्रे सगीर में खुसूसन उसका मुताला कर सकते हैं। ये उम्मत जब कभी मुत्तहिद होगी, एक प्लेटफार्म पर जब कभी इत्तेफाकन जब कभी वो आ सकती है, ये उसी वक्त आ सकती है जब एक तौहीद को समझ कर तौहीद पर इकट्ठा हो। जिस दिन ये तौहीद, उस दिन इसके अंदर इत्तेहाद व इत्तिफाक होगा। जब तक ये तौहीद में इकट्ठा नहीं हो सकती, तौहीद को फॉलो नहीं कर सकती, उस तो इत्तिफाक नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। जमीन इधर से उधर हो सकती है, लेकिन शिर्क के साथ उम्मत इत्तेहाद सकती। ये दो टोक फैसला किताब और सुन्नत का है। और मैं आपको मिसाल दूं, वही सहाबे किराम हैं, वही अरब का माहौल है, और वही जो है जाहिलियत का दौर है, और जाहिलियत में रहने और रसने और बसने वाले लोग हैं। वही जिनकी ज़िंदगियों में लड़ाई, कत्ल-गारदगी, खूरेजी और इज्जत व आबरू से बेपरवाह होना, इन तमाम बुराइयों में लथपथ अफराद वही थे जब तक वो तौहीद से दूर थे। जिस वक्त उन्होंने तौहीद को अपनाना शुरू किया, और जब तौहीद उनके माहौल और मुआशरे में रच बस गया, जब तौहीद के रसिया और खूगर हो गए, फिर वही जो आपस में दस्तो गिरेबा थे, आपस में भाई भाई बन गए। ये तौहीद की बरकत थी, ये तौहीद का सारा था। तौहीद को अपनाओ, तौहीद के गलगले को आम किया जाए, तौहीद पर लोगों को इकट्ठा किया जाए। जिस दिन तौहीद पर ये इकट्ठा हो जाएं, इनको इत्तिहाद की दावत देने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद तौहीद के साथ मुत्तफिक होते चले जाएंगे। मेरे भाई दोस्तों, आज कितनी तंजीमें, कितनी तहरीकें आज से पहले और अब तक लोगों ने बनाई कि ताकि उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया जाए, लेकिन अगर कोशिश नहीं की तो ये कोशिश नहीं की कि तौहीद पर लोगों को इकट्ठा किया जाए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम के तले लोगों को इकट्ठा किया जाए, इसकी कोशिश नहीं की गई। जो असल नुक्ता था, जो बुनियादी चीज़ थी, बुनियादी चीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई, और लोग इत्तिहाद व इत्तिफाक करने के लिए कोशा थे। मेरे भाइयों दोस्तों, इत्तिहाद व इत्तिफाक चाहते हैं, उम्मत मुस्लिमा को एक डगर पर लाना चाहते हैं, एक परचम तले उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, उनकी ताकत व क़ुव्वत को मजबूत करना चाहते हैं, और इकट्ठा कर करके अपनी अज़मत शान को, अपनी अज़मत रफ्ता को बहाल करना चाहते हैं। कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के गाज़े को समझिए, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले
आइए लोगों को लाइए, जिस दिन जितने अफराद इस परचम तले आ जाएंगे मुत्तहिद हो जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि यहीं पर इस दर्स को ख़त्म कर दिया जाए। आपका 50 मिनट मैंने ले लिया है। अल्लाह से दुआ, मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिक्र यहीं से शुरू करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को तौहीद की अहमियत और उसके मकाम व मर्तबे को समझने की तौफीक दें, उसका माना और मफ़हूम समझने की तौफीक दें, उसके तकाज़े को समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दें। अल्लाह इसका जो समरा है, जो इसका फ़ायदा है, जो इसकी बरकत है, जो दुनियावी तौर पर इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़, अल्लाह हमें इस नुक्ते को भी समझने की तौफीक दे। इस नुक्ते को बुनियाद बना करके अल्लाह हमें लोगों को इत्तेहाद की दावत की तौफीक दे, लोगों को एक परचम तले इकट्ठा करने की तौफीक दे, ताकि हम फिर से एक बार मजबूत होकर के दुनिया को साबित कर दें कि हम अबू बकर उमर के सपूत हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम आपके जानसार सहाबा के तसलसल से आने वाली आपकी एक उम्मत के एक माहौल और माशरे के अफराद हैं। मेरे भाई दोस्तों, जब ये खूबियाँ हमें पैदा हो जाएं, यकीन जाने ये दुनिया फिर से गुलजार हो जाए, ये दुनिया फिर से आपके हाथों में आ जाए, इसका अख्तियार और इख्तिदार फिर से आपके हाथों में आ सकता है, और ये कोई बईद चीज़ नहीं है। अल्लाह ने सहाबे किराम, ताबईन इज़ाम, ताबईन इज़ाम को दे करके ये साबित कर दिया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। जो कुछ कहा सुना गया है अल्लाह इसको समझकर इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे, और इसे अपने दीगर भाइयों में पहुँचाने की भी तौफीक दे, ताकि सदक़े जारिया बन सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का ज़रिया बन सके। अल्लाह हम सब को हुस्न अमल, हुस्न ख़ात्मा की तौफीक दे। जब तक रखे हालत इस्लाम, हालत तौहीद पर रखे। मौला जब तू उठा हालत इस्लाम, हालत तौहीद पर उठा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।